that जो लोग फिल्म में काम करते हैं, जो लोग फिल्म बनाते हैं, they've got nothing to do with politics. Yeah. I think artists have nothing to do with politics, and it's so stupid अगर artists start doing politics because they just give us politics. मुझे लगता है artist has no boundaries. हाँ. You know, we have created those boundaries for artists, and which I think really unfair. बहुत गलत बात है. लेकिन there are some artists like Shabana Azmi's husband, what's his name? जावेद अख्तर जी, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. कोई बात नहीं, बड़े हैं बहुत उम्र में, अगर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक्चुअली बदनाम करते हैं दूसरे आर्टिस्ट्स को. You know, they build these little things which people expect other people to follow. पर एक बात बताऊं, अगर आप जावेद साहब के इंटरव्यू उठा के देखें, जब वो बात कर रहे होते हैं, उनके लहजे में एक एग्रेशन होती है, उनके लफ्जों में, अल्फाजों में एग्रेशन होती है जो उनके अंदर है. सो बस वो क्या करें, तोड़ मरोड़ के इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो बस डाल रहे होते हैं, यू नो. बट आई फील सो सैड बिकॉज एक बंदा जब यहाँ नहीं आया वो ये बात बोले, इट्स ओके. अगर एक इंसान यहाँ आया, पूरे मुल्क ने उन्हें इज्जत दी, सारे सितारों ने उनको प्यार दिया, एक लिहाज करा. हमारे माशाल्लाह खूबसूरत सितारे उनके लिए जमीन पर बैठ गए थे घुटने पकड़कर. वो एक फॉर्म ऑफ इज्जत थी. बिल्कुल. It's because we wanted to, maybe हमको ज्यादा झुक गए थे. इतना नहीं झुकना चाहिए, बहुत झुकते हो तो आपको पता है पीछे से क्या होता है, लात पड़ती है. Yes, absolutely. Yeah. तो इंसान को इतना नहीं झुकना चाहिए. I think so. आपको कभी कभी लगता है ये प्यार है या ये कोई फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, इतना नहीं होना चाहिए. पर उन्होंने ये सारी चीजें लेकर और फिर भी वो जाकर ये नेगेटिव बात करते हैं ना, उनके वो दिल में दुख बहुत होता नफरत है हमारे लिए. हाँ, वो दुख होता है. So आप बताओ, ये नीरू जी ने I think maybe because she stays in India, इस वजह से वो एक प्रेशर भी होता है. No, but she does not live in India, by the way. She lives in Canada. She lives in Canada? Yeah. तो आप बताओ role, because I haven't watched the film. It was released on 1st Muharram. Unfortunately, I could not watch it. But I am excited after the 10 days, you know, to go and watch it this week. आप लोग भी जाए, support करें हमारे artists को. Go and watch the film. I've heard great reviews of it. I love how Hania is looking. Thank you. एक वो होता है, and the man behind that beautiful face, she already has a mashallah She's a beautiful girl. face. पर एक होता है ना, एक styling, एक बालों को सही रखना, and making sure that your actress is looking pretty on screen is his job, and he does it brilliantly. So आप मुझे ये बताओ, किसका रोल ज्यादा है, नीरू का, हनिया का? क्या मुझे एक बताएं, एक छोटा सा कुछ बता दे स्टोरी के बारे में, दैट लोग जाकर देखें. Okay, sorry. So I'll tell you इस तरह से. So Neeru Bajwa is playing a chudel in the project, and Hania is a Ghostbuster. She's a literal chudel or a chudel? No. I'm That you will find out in the film. But Okay. she's actually playing a chudel role. Okay. And Hania is a Ghostbuster. Oh. कि वो like, you know, ghost hunting पे जाते हैं दोनों. So दोनों के scenes बराबर ही हैं, but like of course when you go in the cinema and watch it, you'll be like, okay, Hania has a bigger role in this, and that's also fine. It was written, उन्होंने भी देख के contract sign किया होगा ना फिल्म, और Hania ने भी देख के contract sign किया था. हाँ. So अब उस चीज़ पे लड़ना कि यार मुझे unfollow कर दिया और follow कर दिया है, तो वो it's a very petty thing, I would say. हाँ, you did your work, and Yeah. it's okay. अगर कोई unfollow And you were करता है, agreed to do the film. हाँ. You have seen, like आपने वो contract पढ़ा, आपने scenes पढ़े, आपने number of scenes देखे होंगे, I'm sure. तभी तो आपने फिल्म साइन की. But don't you think India becomes really petty? जैसे माहिरा के जालिमा सॉन्ग में से उन्होंने माहिरा को हटा दिया, क्या कर सकते हैं? मावरा को हटा दिया, और फवाद की वो जो फिल्म आ रही थी, that went completely derailed. मतलब it was फवाद इतने टाइम बाद हमें नजर आता फिल्म. Like ये भी देखो ना, फवाद एक 14वीं का चांद बन गया है. I hope वो ज्यादा नजर आए, but वो आए और वो फिल्म वो हो गई. Why do they do that with our artists? अभी हानिया की फिल्म में भी जब ये सिचुएशन हुआ था, तो लोगों ने ये खबरें निकाली थी that हानिया को हटा दिया गया है और ये सारी चीजें. So when you hear these things, do people call you चुगली करने के लिए? No, या actually, वो I don't give people that much space to Uh-huh. call me and ask such questions because I'm a very private person. Like very private. Like मैं काम करता हूँ, गायब, गुम हो जाता हूँ. Because I have my own lot of friends अलग साइड पे. So मैं, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें ना, I just don't understand this कि हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को, और also जब हम काम करने जाते हैं वहाँ पे, वो भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं.
it's not the people if you think about it, it's the government. Because people over there they're so nice. I swear I'm not lying. This is my personal experience working with Indians. They're all amazing people. It's just that their government is not nice about it. They are very petty. So yeah, that's the thing. I just hope that एक होता है that India is our पड़ोसी मुल्क. Unfortunately, we've done जंग, like एक पड़ोसी हमारा इतना जंग पर चल रहा है for no reason. लोग के पड़ोसी मुल्क में कितना अच्छा होता है. You can literally drive. China देखो, बहुत दफ़ा लोग चाइना के पास जाकर तस्वीरें खींच रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं. I just hope that ये जो लोगों ने, चंद पावरफुल लोगों ने एक डिवीजन डाला हुआ है, ये एक बेहतर अंदाज में हो जाए. हम बात करेंगे मजीद चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. Hello and welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे साथ है the celebrity makeup artist with the one and only Mr. Babar Zahir. So yes, हम बात करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में. ब्रेक्स में मुझे ये पता चला भाईजान तो अभी थाईलैंड से भी आए हुए हैं, माशाल्लाह, इटली एंड एवरीथिंग. तो यू एक माशाल्लाह एक मकाम बना लिया है. When is your salon coming out? Very soon. I'm working on it. या यही सोचा है कि इसी तरह का एक चले या फिर नहीं, of course I have my plan that I want to open a salon. मैं काम कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर. इंशाल्लाह बहुत जल्द. अब मैं उर्दू में बात करूँगा. हाँ, उर्दू में हम बात ही करेंगे. बहुत जल्द मैं आपको अपना सैलून खोलूंगा और आपको आना होगा फिर मेरे पास. ऑफ कोर्स मैं आऊंगी. आप अगर नहीं भी बोलेंगे तब भी हम आएंगे सर्विसेज के लिए. इतना प्यारा मेकअप यही करता है. तो खैर ये बताओ, जो बहुत सारी आजकल शादियां और ये सारे ट्रेंड्स जो आपने देखे होंगे, एक रुबैका की शादी भी हुई थी. हुसैन एंड रुबैका, मुबारक हो आपकी शादी के लिए. हुसैन, ये नागिन वाले कॉन्टेक्ट्स क्यों लगाए भाई? Like honestly, and माशाल्लाह दोनों बहुत cute गुड्डा गुड्डी लगते हैं. Very nice, touch wood. I never troll a newly wedded bride and a groom, but I will say that statements नहीं दो. उन्होंने एक statement दिया था that इनकी शादी अंबानी जैसी होगी, और शायद होगी अंबानी जैसी. But we wish you the best. But yes, जो एक मेकअप का अंदाज आपने देखा है, कुछ लोगों ने एक सेट किया है which is केकी, सफेद, ज्यादा भर के ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है. इट्स लाइक ब्लेंडेडनेस नहीं नजर आ रहा. हर चीज लकीर का फकीर लग रहा है. यू गेट इट. और बड़ी दुख की बात है कि हम अभी भी गोरा होने के लिए भाग रहे हैं. आई हैव सीन सम ब्राइड्स जिनका यहाँ तक गोरा होता है और ऐसा लगता है हाथ उनके अपने नहीं. हाँ, एक अलग रंग होता है हाथों का हमेशा, और पाँव भी उनके अपने रंग नहीं है. और आई थिंक व्हेन आई लर्नड अबाउट मेकअप, मैंने ये पढ़ा भी था दैट मेकअप ऐसा होना चाहिए कि गर्दन पर ज़्यादा नहीं हो आपकी बेस. इट शुड मैच योर नेक. तो आप बताओ, जो हमारी बच्चियाँ हैं, ऑफ कोर्स नार्स, डियोर, ये सारे ब्रांड्स अच्छे लगते हैं सिर्फ बोलने के हद तक है. वैसे दे रियली एक्सपेंसिव. दे आर. सो अगर एक नॉर्मल बच्ची जो एटलीस्ट 3-4 हज़ार निकाल सकती है मेकअप के लिए, वो कौन सी बेसिस उठाए? एंड टेल मी, अभी ये जो ह्यूमिडिटी चल रहा है, तो किस तरह का क्विक टिप्स दे दें? मुझे आई पर्सनली लव मेबलिन के कंसीलर्स. बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में और इट्स वेरी अफोर्डेबल. कि आप तो अब आप फूड पांडा से भी ऑर्डर कर लें जाके, मतलब इतनी आसानी से मिल जाते हैं. एक तो वो स्टे बहुत करता है, क्रीज नहीं करता, और अफोर्डेबल है कि आप मतलब यू नो लाइक छोटी बच्चियाँ जो कॉलेज स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, दे वांट टू यूज कंसीलर, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है. उनका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, उनका कंसीलर भी बहुत अच्छा है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं चीज़ें. सो मैं कहूँगा मेबलिन के प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट राइट नाउ फॉर अस. ओके. और कौन सा जो लोग आई हैव लर्नड दैट डार्क मेकअप, डार्क फाउंडेशन होनी चाहिए और हल्का सा पाउडर शुड बी अ मिक्स, यहाँ लाइट और यहाँ मीडियम, जो आपकी स्किन को मैच करता है. तो ये बताइए, जो लोग एक्सट्रीमली, कुछ लोग की फटी हुई बेस होती है, ऐसे लगता है किसी ने चूना लगा दिया है, वो प्रेप नहीं करते अपनी स्किन. तो हाउ ये कैसे करे इस ह्यूमिडिटी में, गर्मी में? हाउ? अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आपको पोर मिनिमाइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस समर के सीज़न में. मुझे ऐसा लगता है. और अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो प्लीज़ आई एम बेगिंग एवरीवन कि आप लोग हमेशा फाउंडेशन से पहले अपना अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं. और अब फिर मतलब देयर आर मेनी ब्रांड्स इन पाकिस्तान जो बहुत अच्छे